very big hello to all my students. I am here with the solutions of ANTS FT3. I hope by now आप थोड़ा used to हो गए हैं how to appear for the papers, time management. I hope वो सब आपको थोड़ा सा पहले से better हो गया है. Try to improve yourself. Okay? चलो let's start with the botany part. Question number 101. The very first question out here is match the following. तो देखते हैं. Let me write A, B, C and T. चलिए. फर्स्ट इज हर्बेरियम. आप सबको पता हर्बेरियम का एक स्टोर हाउस है जहां पर वी गो फॉर व्हाट, प्रिजर्विंग द प्लांट स्पेसिमेंस. प्रिजर्व मतलब मार दिया, मारने के बाद. सो व्हाट इज दिस? तो सबसे पहले कहां पर यू कैन मैच दैट विद ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. नेक्स्ट बोटानिकल गार्डन. इट्स अ एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू नहीं, एक्स सिटू अवे. बोटानिकल है तो बॉटनी के बारे में, प्लांट्स के बारे में. तो वे व्हाट इज दिस? डीलिंग विद द प्लांट्स आउट हियर. डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग प्लांट्स, दैट मीन्स वहां पर आप उसको कंजर्व करोगे. लिविंग वाले को तो डाइवर्सिटी हो गया. सो दैट इज विद द ऑप्शन नंबर 4. Let's talk about the zoological park. जैसे botanical garden होते हैं for the plants, zoological parks are for the animals. So that means which is the better वाला? It is the second option. Option number 2. Let's talk about the D now. वैसे भी काट के आ जाता म्यूजियम. म्यूजियम में प्रिजर्वेशन करते. प्रिजर्वेशन मीन्स मरने के बाद, कंजर्वेशन मीन्स जिंदा को. सबसे पहले प्रिजर्वेशन किसका? प्लांट्स के, एनिमल्स, दोनों का. सो देयरफॉर इफ आई गो फॉर इट, द आंसर नंबर 1. अब देख लीजिए 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Therefore, the answer for the 101 question happens to be the A option. Clear? चलिए. 102. In which of the following plants 2 stages in the gametophyte is seen? सबसे पहले gametophytic generation किस में dominant है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म. किस में डोमिनेट है गेमेटोफाइटिक जनरेशन? इट इज द ब्रायोफाइट्स. तो सबसे पहले लेट्स टेक द हिंट विच इज ब्रायोफाइट्स आउट हियर. अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ब्रायोफाइट अमंग दिस. मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट है. फिनेरिया क्या है? ब्रायोफाइट है. स्लेजिनेला क्या है? टेरिडोफाइट्स है. ड्रायोप्टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट्स. तो मेरे पास सी एंड डी ऑप्शन चला गया because sporophytic generation is dominant in the pteridophytes. तो ये चला गया. अब मेरे पास A and B बच गया है which is bryophytes. In case of Markensia, I'm having this type of thalloid bodies. This is the gametophytic stage. That means just the thalloid body. But in case of Funaria, Funaria happens to be a moss. Funaria का जो gametophyte है उसमें 2 stages है. One is known as the juvenile stage. Juvenile stage मतलब the younger stage. What is this juvenile stage said to be? The protonema. Protonema हमारे पास में 2 जगह पे पूछा गया है. Protonema is the filamentous stage arising from a spore. Chapter number 1 क्या पूछा उसमें? undergoes division मतलब fragmentation करके reproduction करता है. बट यहाँ पे प्रोटोनिमा इज द जुवेनाइल स्टेज ऑफ द फिनेरिया. और दूसरा यहाँ पे adult stage जो होती है, what is the adult stage of the Funaria or the moss is said to be the leafy gametophore. Leafy gametophore. Is that clear? So that means all the mosses, the gametophyte is divided into 2 stages, the younger stage and the adult stage. Younger stage को protonema, adult को leafy gametophore बोलते हैं. The answer for this happens to be the option number A. Okay? चलिए. Strobili 103. What is strobili? Strobili is said to be a cone. What is a cone? जब बहुत सारा स्पोरोफिल मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी और द कोन. इफ यू रिमेंबर मैंने क्लास में आपको पाइनस का कोन ला के दिखाया था, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. इट इज कंपोज्ड ऑफ गैमेट्स बेयरिंग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. नो, इसमें गैमेट का कुछ लेना देना नहीं. तो आई एम गॉन विद द ऑप्शन नंबर ए. Spore bearing structures developed on the gametophyte. No, strawberry is a part of the sporophyte. तो ये भी चला गया मेरे पास में. चलिए आगे देखते हैं. It's a compact structure made up of sporophyll. Yes, strawberry or the cone is made up of बहुत सारा spore bearing structure. तो sporophyll क्या होता है? Sporophyll.
fill out here happens to be the leaf, और कौन सी लीफ है? स्पोर बेयरिंग लीफ है, जिसके अंदर स्पोरेंजियम होते हैं. स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होते हैं which form spore by meiosis. That compact structure is known as a strawbelly. Normally strawbelly is seen in case of gymnosperms, but हमने पढ़ा कुछ pteridophytes में भी strawbelly होता है. One of the example for that is what? Equisetum, है ना. तो चलिए यहाँ पर this is right. The answer for 103 happens to be the C option. फिर भी D देख लेते हैं. Loosely arranged archegoniophore on the female gametophyte. आर्किगोनियोफोर, फोर मतलब स्टॉक जिसके ऊपर आर्किगोनिया है. हमारे एनसीईआरटी में आर्किगोनियोफोर एक ही जगह लिखा है. वो किस में लिखा था? डायग्राम याद करो. दिस इज इट एंड इसके ऊपर में फ्लावरी स्ट्रक्चर. किसका डायग्राम बना के दिखाया? मार्केंशिया का. ओके, सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज मार्केंशिया के अंदर में स्ट्रॉबेरी और कोन नहीं होता है. ओके, 104 इनकरेक्ट मैच को करना है. ए, सिकोयास, redwood plant. Sequoia happens to be a gymnosperm. It's a giant gymnosperm. So A option is मेरे लिए पास correct. B option, Pinus. The male and the female cones are on the same individual. That means same plant के अंदर में Pinus के plant में male and female cone होता है. Correct है, because Pinus is monoecious. Monoecious means the same plant having both the cones, both the sexual parts out here. So this is also correct. C option. Wolffia, the smallest angiosperm. ये तो याद करने का चीज है. That is correct. And D option. तो automatically ऐसे ही हमारे पास D should be the answer for the question. Unbranched stem. सबसे पहले Cedrus happens to be a gymnosperm which is having branched stem. मेरे पास दो एग्जाम्पल है branched stem का in case of gymnosperm. One is Cedrus, दूसरा क्या? Pinus. तो unbranched कौन है? Cycas. So this option happens to be wrong. Therefore the answer for 104 happens to be the D option. Fine with this? Okay. 105. Which of the following statement is correct about the component of the cell that protects it from mechanical damage and infection? सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता है. एनिमल्स के लिए है वेटनरी डॉक्टर, वेट बोलते हैं, और हम लोग के लिए भी डॉक्टर्स हैं, बट प्लांट्स के लिए कोई नहीं है. तो भगवान ने उसको खुद ही ऐसा सिस्टम दे दिया है, अडेप्टेशन बोल दिया कि तुम खुद ही अपना इलाज कर लो. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. मैकेनिकल डैमेज नहीं हुआ, इन्फेक्शन भी नहीं करने दे रहा. ओके, सो व्हाट इज इट विच इज करेक्ट फॉर दैट? इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और सबसे पहले बताओ ये किसके बारे में बात करें? दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सेल वॉल. एनसीईआरटी की लाइन है, द सेल वॉल जो है हमारे पास में और मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को. तो इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं करेगा उसको. इट इज लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर. थोड़ा सा मुझको राइट लगा. किसने सोचा राइट है? थोड़ा सा रॉन्ग है. वाई? वो क्या है? नॉन लिविंग है ना. सो ये हमको घुमा दिया है. रिजिड इज राइट बट दिस इज व्हाट? नॉन लिविंग आउट हियर. इट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली सेल में पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर हमारे पास सेल वॉल होती है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन. फिर भी डी देख लेते हैं. इट इज चीफली कंपोज ऑफ काइटिन इन द प्लांट्स. नो, it is made up of chitin in fungi. Plants में it is made up of cellulose होता mainly, but cellulose, hemicellulose and pectin. But यहाँ पे answer for the question is 105 का option number C. 106 यहाँ पे लिखा PNQ arms. अगर आप सोचे PNQ arms हमने नहीं, बुक में तो है नहीं, मैडम ने क्यों डाल दिया आपको बता दूं. 20 में आपके पास में, 19 में होपफुली आपके पास में P arm के बारे पूछा गया था. तो let's talk about the question now. थोड़ा तो हमको इधर उधर करना पड़ेगा, एक या दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं. चलिए लेट्स टॉक अबाउट 106. चलिए देखिए, सबसे पहले इफ आई एम हैविंग अ क्रोमोसोम आई कैन हैव दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. चलिए ऐसे पहले बना देती हूँ, फिर आई विल टीच यू फर्दर. चलिए देख लेते हैं ना. P and Q, these are the two arms. बीच में मेरे पास क्या होता है? सेंट्रोमियर. ये इसके दो आर्म्स हैं. अब पूछा है which of the following chromosomes P and Q arms cannot be seen, मतलब दिखाई नहीं दे. दिस वाला व्हेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू दिस द सेंट्रोमियर. दोनों आर्म्स आप बराबर, छोटा मोटा थोड़ा लग रहा है तो जस्ट इमेजिन इट इज बराबर. व्हाट इज दिस नोन एज? मेटासेंट्रिक. क्या बोलते हैं इसको? मेटासेंट्रिक. फाइन. दूसरा देखो थोड़ा सा साइड में आ गया. व्हाट इज दिस नोन एज? सब मेटासेंट्रिक. फाइन.
तो मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक दोनों में मेरे को दोनों आर्म्स दिखाई दे रहा है। द सी वाला हैपेंस टू बी एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे भी मेरे को दूसरा आर्म छोटा दिखाई दे रहा है, पर दिखाई दे रहा है। लास्ट वाले में देखो मेरे पास एक आर्म दिखाई ही नहीं दे रहा है, व्हाट इज दिस, टीलोसेंट्रिक। तो ऐसा कौन है जिसमें मेरे पास एक आर्म नहीं या दोनों आर्म नहीं दिखाई दे रहा है? तो ऐसा सिर्फ डी वाला है टीलोसेंट्रिक, जिसके अंदर मेरे को only one arm is visible while the centromere is at the end of it. Therefore the answer for this question happens to be option number, sorry, it is D out here. The answer for that happens to be option number A. D नहीं है भाई, ये D टीलोसेंट्रिक राइट है, बट ऑप्शंस मेरे पास क्या है? Only D. I cannot have any of this, okay? So therefore the answer is option number A. Fine with this? चलिए 107 now. Read the options. Option number A, मैंने statement number A. Almost all animals lack, घुमा दिया, all animals lack लिखा है, नहीं है। क्या नहीं है उसके पास में? सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। नो, सेंट्रियोल इज द फीचर ऑफ एनिमल्स ओनली फ्यू प्लांट्स, वो भी लोअर वाले, can have what? This part out here, this organelle out here. So this statement obviously A wala statement is wrong. In human beings, statement B, the membrane of erythrocyte, that means RBC, has approximately 40% protein and 52% lipid. देखने में तो राइट लग रहा है, बट क्या रॉन्ग कर दिया उसने? प्रोटीन मेरे पास कितना है? It is 52 एंड मेरे पास वो कितना है? लिपिड्स, इट इज 40%. तो दैट मीन्स इसको भी उल्टा कर दिया है. दैट मीन्स A and B both of these are wrong. Therefore the answer for the question happens to be both statements are incorrect. That is the D option. Fine. चलिए 108 चलिए देखते हैं. Two cells are A and B. चलिए देख लीजिए, अब DPD का क्वेश्चन है. डोंट टेल मी दैट DPD नहीं है हमारे सिलेबस में, हमको थोड़ा सा इधर उधर पढ़ना ही पड़ता है. यू हैव स्टडी अबाउट द वाटर पोटेंशियल, यू हैव स्टडी अबाउट ऑस्मोसिस, तो ये उससे कोरिलेटेड वर्ड ही है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. A सेल A, DPD कितना है इसका सेल A का? दिस इज हैविंग 7 atmosphere as the DPD. Cell B is having what? It is having 3 atmosphere as the DPD. Now, सबसे पहले DPD क्या है? DPD is diffusion pressure deficit. ठीक है ना? अब सुन लीजिए. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मैंने बताया पानी के बारे में. डेफिसिट, डेफिशिएंसी, दैट मीन्स किस चीज का डेफिशिएंसी? पानी का. जिसके पास में ज्यादा DPD है वो डेफिशिट ज़्यादा है, कम पानी है उसके पास में, वो क्या करेगा? ऑब्वियसली पानी दूसरे से लेगा. सो देयरफॉर बिकॉज DPD ऑफ A इज 7 एटमॉस्फेयर, तो B उसको पानी देगा. फर्स्ट ऑप्शन से वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B एंड वाइस वर्सा, मैंने A से B जाएगा, B से A जाएगा, विच इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन से दैट नो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल A एंड सेल B, मतलब दोनों से पानी नहीं जा रहा है. थर्ड ऑप्शन से दैट वाटर फ्रॉम सेल A टू B, नहीं, मैंने क्या बताया? B टू A. Movement of the water from cell B to A, and that is the right option as option number D. फिर भी एक बार देख लेते DPD होता क्या है? DPD is equal to osmotic pressure minus the Turger pressure. ठीक है? अगर सेल में यहाँ पे डिपेंड करता है, Turger pressure 0 भी हो सकता है, तब what is this? DPD is equal to osmotic pressure. अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो जस्ट इसको देख लेना. ऑस्मोटिक प्रेशर तो सबको पता है. अगर हम A और B में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है? A का, तो पानी कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा ना. सो दैट मीन्स अगर आपको DPD समझ में नहीं आया, ऑस्मोटिक प्रेशर देखना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, इसका लेस, तो मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हियर टू हियर. सो DPD इज बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, बट वैसे कंप्लीट इक्वेशन फॉर दैट इज OP माइनस द TP. फाइन. चलिए 109. Number of ATP required to produce 1 glucose molecule in C4 plants. चलिए देखते हैं. C4 plants जो हैं, जब खाना बनाते हैं, बेसिकली खाना उसके C3 साइकिल से ही बनता है. ओके, तो C3 साइकिल में जब वो बना, उसको कितना ATP लगता है? C3 साइकिल में उसको 18 ATP लगता है, प्लस NADPH2 कितना लगता है? 12 NADPH. ठीक है ना? चलो, बट
C4 का अपना भी तो पार्ट है। लास्ट स्टेप, पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, वहां पे हमारे पास कितना एटीपी लगता है 12, सो दैट मीन्स 12 और लग गया यहाँ पे C4 का प्लस करने से, दैट मीन्स 30 एटीपी फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो इसमें क्या पूछा, 1 पूछा है, therefore the answer for 109 happens to be the B option which is 30। अगर मेरे पास में C3 होता तो मेरे पास आंसर क्या होता, 18 आउट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 110, पिगमेंट सिस्टम 2 फोटोसिंथेसिस से है, हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 650। नहीं, हमारे पास हमने क्या सीखा है, पिगमेंट सिस्टम 1 का रिएक्शन साइट हैपन्स टू बी 700 नैनोमीटर, वेयर एज पिगमेंट सिस्टम 2 का हमारे पास में क्या है 680। तो दिस इज रॉन्ग है ना। चलिए आगे देखते हैं। बी ऑप्शन इज अटैच्ड विद वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। यस, पिगमेंट सिस्टम जो 2 है इसमें वाटर, बी ऑप्शन पिगमेंट सिस्टम 2 जो है उसमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड टू दैट। यस, हमारे पास में जब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर डिसोसिएट्स इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये किससे एसोसिएटेड है, विद द पिगमेंट सिस्टम 2। ये इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 2 पे जाते हैं, देन हमारे पास एक्साइटेशन है वहां पर, है ना। सो दैट मीन्स इसके अंदर जो डेफिशिएंसी होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कौन फुलफिल करता है, दिस इज बीन फुलफिल्ड बाय द फोटोलाइजर वाटर। सो दैट मीन्स द बी ऑप्शन हैपेंस टू बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आगे देख लेते हैं। It is found in cyclic photophosphorylation only. No, it is only the pigment system 1 which is found in the cyclic वाला। cyclic में एक ही pigment system होता है, that is pigment system 1. But this is found in both cyclic as well as non-cyclic. This is found only in the non-cyclic. So यहाँ पे क्या होना चाहिए था, non-cyclic. And contains chlorophyll B only। नहीं, सब pigment system में chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid सब कुछ होता है। So therefore the answer for this happens to be the B option. Fine. 111, pyruvate dehydrogenase requires what? अच्छा, पहले देख लेते हैं ये इक्वेशन किस इक्वेशन में काम आती है। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस जब मेरे को क्या करना है, क्रेब्स साइकिल, बीच में मेरे पास एक स्टेप आता है, दिस स्टेप इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक एसिड। सो आई टेक पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए। याद करो कोएंजाइम ए में क्या है, कौन सा एलिमेंट, सल्फर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। प्लस अलोंग विद दैट व्हाट डू वी हैव, वी आर हैविंग NADP। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड इज दिस, 3। यहाँ पे मेरे पास बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है ना, यहाँ से कोएंजाइम इसमें लग गया, फिर यहाँ से मेरे पास 3 कार्बन कंपाउंड था, ये कितना 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। यहाँ पर पायरुविक एसिड का क्या हो गया, हाइड्रोजन निकला, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव। दैट मीन्स हाइड्रोजन निकलना मतलब हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मीन्स इट्स नोन एज ऑक्सीडेशन आउट हियर। प्लस साथ में मेरे पास जो हाइड्रोजन निकला दैट अटैचेस टू दिस, रिड्यूसेस दिस आउट हियर। फाइन, तो ये जब इसको रिड्यूस कर दिया तो आई एम गोइंग टू हैव दिस फॉर्मेशन। तो मेरे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब यहाँ पे पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकला, दिस इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ इट। तो एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन तो हमको समझ में आ गया। एंड वेयर डू हैव दिस रिएक्शन, दिस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। रिक्वायर्स व्हाट, डज इट रिक्वायर Mn? नो, हमारे पास Mg लगता है। Does it require FAD? No, it requires NAD. Sorry, it is not NADP, it is NAD. NADP कब आता है, जब भी हमारे पास में फोटोसिंथेसिस आता है। तो प्लीज गो फॉर दिस करेक्शन, it is NADP. NADP reduces to NAD reduces to NADH2। क्या सिखाया मैंने, P कब बोलना है, फोटोसिंथेसिस का में है, याद कर लीजिए। P photosynthesis P, और यहाँ पे NAD reduces to NADH2, not NADP reduces to NADH2। ठीक है, क्लियर विद दिस। अच्छा, तो ये भी मेरे पास चला गया। ATP नहीं, ATP तो नहीं, बट बाद में बनता है, बट यहाँ पे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मेरे को, कोएंजाइम A। फाइन, द आंसर फॉर 111 हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर B। तो क्या सिखाया मैंने, जब भी रेस्पिरेशन है हमें NAD का रिडक्शन होगा NADH2, जब भी फोटोसिंथेसिस है NADP
NADPH2 या NADPH+H+. ओके, चलो गॉन. 112. The first step of TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water. चलो देख लेते हैं. जब मेरे पास यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A बना, कहाँ से बना? दैट इंटरमीडिएट स्टेप, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इसने किससे रिएक्ट किया? ऑक्सलोएसिटिक एसिड प्लस क्या ले लिया? पानी यहाँ से. व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स अ कंपाउंड नोन एज साइट्रिक एसिड. Yes, the very first step of the TCA cycle happens to be what is condensation of this and this, which forms what? The citric acid, which is very correct answer. So A is right. आगे देखते हैं हम लोग. Yields a 5 carbon product. पहले देखिए साइट्रिक एसिड बना है. साइट्रिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन. So there means B option is incorrect. Is catalyzed by citrate synthetase. सिंथेटेज, अब स्पेलिंग इसमें करेक्शन करना पड़ेगा. साइट्रेट सिंथेटेज एंड दैट इज करेक्ट. यहाँ पे साइट्रेट सिंथेटेज होगा ही बिकॉज साइट्रिक एसिड बना है. सो दैट इज करेक्ट. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी A and C, मतलब ऑप्शन नंबर D. चलिए क्वेश्चन नंबर 113. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स जो दिया है TCA साइकिल का, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, रिडक्शन ऑफ NADP हो रहा है. ठीक है, लेट्स सी टू दैट. ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सलोएसिटिक एसिड जो है जाके हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना रहा है. द पॉइंट इज उल्टा है. दिस फॉर्म्स दैट, एंड वैसे भी यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास कुछ NADH2 नहीं हो रहा है बिकॉज बहुत स्टेप्स बीच में आ रहा है. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेप एट ऑल. ओके, बिकॉज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम में, सक्सेनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड, फिर हमारे पास फुमारिक एसिड, मैलिक एसिड, फिर जाके ऑक्सलोएसिटिक एसिड. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन बी, मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सलोएसिटिक एसिड, विच इज वेरी करेक्ट. यहाँ पर मैलिक एसिड जब बनता है, ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनाता है, तो NAD जो है कन्वर्ट्स इनटू NADH2. दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. बट कुड यू प्लीज टेल मी मैलिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है? दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड. ऑक्सलोएसिटिक एसिड कितना है? 4 कार्बन. तो ये तो रिड्यूस हो रहा है, बट क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हो रहा है, तो नो कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये मेरा ऑप्शन ये भी रॉन्ग हो गया. ये भी रॉन्ग. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. लेट्स टॉक अबाउट द सी ऑप्शन. पैरविक एसिड कन्वर्ट्स टू एसिटाइल कोएंजाइम A. अभी मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था जहां पे NAD reduces to NADH2 and carbon dioxide is evolved, but this is still not the answer for it. आप सोचो क्यों नहीं आंसर? मैडम तो बोल दी ये राइट है, फिर क्यों नहीं आंसर? बिकॉज अभी क्या बताया TCA का, इसका पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट? फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड. ये उससे पहले हो जाता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज, और इसमें क्वेश्चन पूछा है TCA साइकिल का. सो दैट इज नॉट द आंसर फॉर इट. ऑप्शन नंबर डी देखो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू सक्सेनाइल कोएंजाइम A. राइट है. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है, सक्सेनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड है. तो मेरे पास NAD भी रिड्यूस हो रहा है इसमें एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो रहा है. तो देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114. मिसमैच किया, देख लीजिए. ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, स्पेस एल्गा, ग्रीन एल्गा है, बट वो साथ में क्या है? इट इज ऑल्सो केप्ट अंडर प्रोटिस्टा. तो देखते क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा राइट है मेरे पास में. एक्टोकार्पस फिलामेंटस ब्राउन एल्गी राइट है, ब्राउन एल्गी है, केल्प है. क्लमाइडोमोनस कप शेप क्लोरोप्लास्ट, यस इट इज अगेन कप शेप क्लोरोप्लास्ट. एक ही में हमने पढ़ा है, कप शेप सिखाया है. पॉलीसेफोनिया, व्हाट इज पॉलीसेफोनिया? इट इज अ, व्हाट इज दिस? इट इज अ रेड एल्गी, एंड रेड एल्गी में हमारे पास में नो फ्लैजेला, दैट मीन्स नो मोटिलिटी. मोटिलिटी नहीं है, मोटिलिटी एब्सेंट. ठीक है ना? देयरफॉर द डी ऑप्शन हैपेंस टू बी अ मिसमैच. ठीक है ना? क्लियर है? पॉलीसेफोनिया तो आपको एग्जांपल याद ही है. फाइन. किसी को वो 114 में अगर ये देखना है, दिस इज अ क्लमाइडोमोनस, दिस अ क्लमाइडोमोनस. यहां पर नहीं तो ऐसा बना लो, दिस इज बेटर, अ क्लमाइडोमोनस. ऐसा करके बना हुआ डायग्राम हमारे पास में. ये न्यूक्लियस है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है. दिस स्ट्रक्चर इज ड्रॉन, और यहाँ पे क्या बना हुआ है? पायरिनॉइड है ना. तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. फाइन. तो उस क्वेश्चन का आंसर 114 में डायग्राम आप ये चेक कर सकते हो. ओके, चलिए 115 नाउ. असेंट ऑफ सैप, असेंट
ऐसे जाना. Sap means water plus mineral and ascent of sap deals with the xylem sap. Phloem sap is different. Okay, चलो. Is the result of turgor pressure in the leaves. देखो, turgor pressure in the leaves है पहला option. Is that so? Ascent of sap उससे obviously no. Is due to the root pressure only. Only root pressure. Root pressure is responsible for ascent of sap, which is correct out here. But 4% of that only कब? जब हमारे पास ट्रांसपिरेशन पुल काम नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, रिक्वायर्स एनर्जी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. नो, अगर रूट प्रेशर चल रहा है तो एटीपी हमको चाहिए और दैट इज व्हाई इट्स एन एक्टिव प्रोसेस. बट इट्स मेनली ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल. यस, ट्रांसपिरेशन पुल हमारे पास असेंट ऑफ सैप करता है. अगर 3 पॉइंट्स याद है, कोहेजन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन, रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोहेजन ऑफ वाटर एंड द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वही हमारे पास क्या करा रहा है? असेंट ऑफ सैप. तो ऑब्वियसली टर्गर प्रेशर इन द लीफ से रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना. चलिए, सो द आंसर फॉर दैट इज डी ऑप्शन. 116, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस. सबसे पहले पार्थेनोकार्पी होता क्या है? पार्थेनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग. जब एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं होगा तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस. एंड हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं नॉर्मली कौन कॉज करता है? हॉर्मोन्स कॉज करता है. हमने पढ़ा है ऑक्सिन इज नोन टू कॉज पार्थेनोकार्पी इन केस ऑफ टोमेटोज, है ना. ऐसे जिबलिन भी कॉज करता है पार्थेनोकार्पी. बट लेट्स सी द ऑप्शंस. ए ऑप्शन क्या है? एपोमिक्सिस. व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस मीन्स आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स सीड बन रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. इसका दूसरा नाम क्या सिखाया था? गैमोस्पर्मी. दैट मीन्स स्पर्मी मतलब सीड्स, गैमो मतलब फ्यूजन एंड विदाउट फ्यूजन सीड बन जाना. वेयरएज पार्थेनोकार्पी क्या है? फ्यूजन नहीं होना बट सीड भी नहीं बनना, है ना. तो ये मेरे पास ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन करना और फिर तो ऑब्वियसली सीड बनेगा. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. व्हाट आर ग्रोथ हार्मोन्स? तो अभी जो मैंने बताया हार्मोन्स है तो पीजीआर बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, तो वो राइट है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, नो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैन हैव पार्थेनोकार्पी. हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो सीड बनेगा. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चल. 117, 2000 years viable seed discovered by, कहाँ से? किंग हैरोड्स पैलेस से आया. तो डेड सी से, नियर डेड सी. कौन है वो? 2000. बुक में 2 लिखा, 2000 एंड 10,000. 2000 में यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है? डी, फिनिक्स डक्टिलिफेरा. ये किसका बोटानिकल नेम है? डेट पाम का. हो सकता है पेपर में इंस्टेड ऑफ दैट आपको डेट पाम लिख के दे दे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस नॉर्मल नेम फॉर इट. दिस द बोटानिकल नेम. बट जो मैंने बोला 10,000 ईयर्स लिखा है वहां पर, वो किसके बारे है? दैट इज द ए ऑप्शन. अगर मैं पेपर में 10,000 देती तो लुपिनस उसका आंसर होता. एज फार एज ऑर्किड्स एंड ऑर्बंकियस कंसर्न, बहुत छोटा सीड्स है. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर सीड्स. स्ट्रिगा, ऑर्बंकी एंड ऑर्किड लिखा हुआ है. सो दैट इज फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इसमें से डिफरेंट आंसर्स में से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए. ओके, चलिए. 118, मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इंसेक्ट पॉलिनेटर, अब इंसेक्ट है, पॉलिनेशन करेगा, ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होगा, स्मेल से अट्रैक्ट होगा, पोलन से अट्रैक्ट होगा, नेक्टर से अट्रैक्ट होगा, है ना. उसको कुछ लेना देना नहीं है फेदरी पोर्शन से, है ना. कोई पोर्शन, कोई लंबे से कुछ नहीं लेना देना. तो लेट्स सी टू दैट. हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप द पोलन. नो, अगर मेरे पास जो स्टिग्मा है ये ओवरी है, ये मेरे पास स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये फेदरी है. इसको क्या करना है? अगर फेदरी हो तो विंड से रिलेटेड है, तो दिस इज नॉट कंसर्न विद दैट. हैव टेसल्स विच वेव इन द विंग. टेसल्स सिखाया था मेज के अंदर में, तो टेसल्स है, अट्रैक्ट करता है, तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ व्हाट? विंड का, मेज से. पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेन. स्टेमेन बाहर खड़ा हुआ है, वो भी किस में? विंड में है. तो आंसर फॉर 118 हैपेंस टू बी अ लार्ज. ठीक है, फ्लावर्स बड़े बड़े, कलरफुल है, फ्रेगनेंट है, नेक्टर है, तो सब कुछ है इसके अंदर. तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. ये तो इजी सा है, ऐसे ही आ जाता आपको, है ना. चलिए, चलो. 119, लुक एट दिस. विच ऑफ द क्रॉस गिव्स यू 9:3:3:1? पहला वाला देख लीजिए. व्हाट इज दिस क्रॉस? दिस इज हेट्रोजाइगस इनटू द रिसेसिव.
What is this cross known as? It's known to be a test cross, जिसका आंसर आएगा 1:1:1:1. तो this is wrong. मैं सेकंड कर देती हूँ आपको, RRYY into RRYY. चले गैमेट्स देखते हैं, इसमें कितने गैमेट्स बना? It's 2 to the power 1. दैट मीन्स एक मेरे पास गैमेट ऐसा बना है, एक मेरे पास गैमेट ऐसा बना. ठीक है, इसके कितने गैमेट्स बने? इसके अंदर भी गैमेट्स मेरे पास क्या बना? RY and RY. ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरे पास? I'm going to get this, I'm going to get this, I'm going to get this and I'm going to get this. तो क्या आया मेरे पास आंसर? This and this gives me same, this gives me same, this gives me different. तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 3:1. तो which is wrong, है ना? ये अगर राउंड है येलो है, राउंड है येलो है, राउंड है येलो है, this is round and green. So that gives me 3:1 ratio. So that is wrong. But answer for the question which is 9:3:3:1 is what? The D option. I hope वैसे ही आप C वाले को भी कर लेंगे, similar type of question. इसमें भी कितने गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल R स्मॉल y, एक ही गैमेट. इसमें है 2 गैमेट बनेगा, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, है ना? चले 120. How many true breeding pea plant varieties were selected by Mendel? ये तो बिना देखे true breeding means homozygous state, कितना उसने लिया था, which differed only in one character. The answer for that is 14. बुक का सीधा लाइन है, I need not mention anything about that. That's a straight line from the book. Okay, चलिए 121. Who among the following use the frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the genes and map this? तो कौन था the scientist who made the first chromosome map? और किसमें बनाया था? ड्रोसोफिला में. और कौन था वो scientist? He was who? Sturtevant, Alfred Sturtevant. ये कौन था वैसे? वैसे साइंटिस्ट था. He was the student of Morgan. Morgan is known as the father of experimental genetics. उसका ही स्टूडेंट था ये स्टूटवेंट, और उसने बताया था जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस है उतना ही रिकॉम्बिनेशन है. ठीक है ना? So he was the one to map this and make a chromosome map, जिसको जेनेटिक मैप बोल सकते या लिंकेज मैप भी बोलते हैं. ओके, सो जो हमने भी क्वेश्चंस करते रहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, फाइंड इट आउट, दैट इज इट. ओके, सुटन एंड बोवरी ने क्या दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मॉर्गन ने तो बता दिया, ये भी बता दिया. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. T.H. Morgan and his group, while working on Drosophila, Morgan was the scientist who worked on Drosophila, found that even when the genes were grouped on the same chromosome, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, क्वेश्चन नंबर 122, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है? जीन्स है. ठीक है ना? वी आर हैविंग जीन्स ऑन दिस, ये जीन्स है. ठीक है ना? वी आर हैविंग जीन्स, ये सब जीन्स है यहाँ पर. Some genes were loosely linked and showed. अगर जीन्स क्लोजली लिंक्ड है, लिंक्ड है यहाँ पर, तो क्या दिखाएगा? लिंक्ड होने से मेरे पास में क्या है? नो रिकॉम्बिनेशन. नो रिकॉम्बिनेशन दैट मीन्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनेगा. अगर लूजली प्लेस्ड है यहाँ पर तो मेरे पास रिकॉम्बिनेशन बनेगा. तो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी, लेट्स सी द ऑप्शन आउट हियर. लूजली लिंक बोला, नो रिकॉम्बिनेशन रॉन्ग है. नो रिकॉम्बिनेशन कब होगा? जब कंप्लीट लिंकेज है. हायर रिकॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली मेरे पास लूजली है तो रिकॉम्बिनेशन रेट हैपेंस टू बी हायर. वेरी लो और नेग्लिजिबल रिकॉम्बिनेशन रॉन्ग है. अच्छा, मुझे याद करके बताओ कौन सा एग्जाम्पल उसने दिया है मॉर्गन ने यहाँ पे? लो जो है मेरे पास में थोड़ा पास में लिंक्ड है, तो हमने क्या? बॉडी कलर, आई कलर बहुत कम हमारे पास में रिकॉम्बिनेशन दिखाता है 1.3. बट अगर मैं बात करती हूँ द बॉडी आई कलर और विंग्स के बारे में, तो हमारे पास में रिकॉम्बिनेशन काफ़ी होता है ना? याद है ना? चलिए, सो क्या आंसर बताया 122 का? ऑप्शन नंबर सी. चलिए प्रोसीड फर्दर. 123 मिसमैच. क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, आई होप आप सबको पता है, गाइनोमेस्टिया बोलते हैं. व्हाट इज दिस? प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स इन केस ऑफ द मेल. तो एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, गाइनोमेस्टिया राइट है. बी, टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम इज हमारे पास में यहाँ पे फीमेल के अंदर में एक एक्स तो है, वन एक्स इज मिसिंग, और वैसे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेस डेवलप्ड है, तो रूडिमेंट्री ओवरीज करेक्ट है, सेक्सुअल पार्ट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, रॉन्ग राइट है. सी ऑप्शन. Down syndrome. What is Down syndrome? Trisomy seen in the chromosome 21. Trisomy यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पे trisomy हो गया. That means एक क्रोमोसोम ये था 21 में, एक क्रोमोसोम ये है, एक और एक्स्ट्रा लगा दिया. तो seen in only in males.
21st क्रोमोसोम तो मेल फीमेल दोनों में है, so that is this is the wrong option. That means the answer for 123 happens to be C option. Let's see the D option too. Hemophilia. Hemophilia किसको बोलते हैं? Bleeders disease. That means blood bleed करता रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती है हमारे पास. रेयरली सीन इन केस ऑफ फीमेल्स, येस, बिकॉज इट इज एन एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक और इट्स एक्स लिंक्ड आउट हियर. तो जब तक ये दोनों में नहीं आएगा तो फीमेल्स में होने का चांसेस कम है. बट मेल्स आर नॉर्मली व्हाट गोइंग टू सफर फ्रॉम हीमोफीलिया. फीमेल्स नॉर्मली क्या होते हैं? कैरियर्स हैं. और ये क्या दिखाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. फाइन, सो दिस इज राइट ऑप्शन. सो देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 124. चलिए देखते हैं. ई कोलाई हाइब्रिड डीएनए विद वन स्ट्रैंड. ये देखो हाइब्रिड डीएनए, ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास 14 है, ठीक है ना. नाउ उसको हमने किया, इसको अलाउ किया ग्रो करने के लिए अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है? 14 है. अब उसने क्या पूछा? कितना जनरेशन? 3 जनरेशन. सो लेट्स सी टू दैट. ये जब फर्स्ट जनरेशन करेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, है ना. तो फर्स्ट जनरेशन में मेरे पास क्या बनेंगे? 2 बन जाएंगे यहाँ से. ये क्या हो गया? 15. ये क्या हो गया? 14. इसका पार्टनर बनेगा 14, इसका पार्टनर बनेगा 14. दैट मीन्स अगर मुझे फर्स्ट जनरेशन पूछते तो हाइब्रिड कितना बनता? 1/2. अब मेरे को सेकंड पूछोगे तो 1/4. दैट मीन्स 2 से 4 बनेंगे. थर्ड पूछोगे 1/8, है ना. तो 1/8. तो 1/8 अगर मैं परसेंटेज देखती हूँ तो कितना हाइब्रिड का बनता है? 1/8. दैट गोज फॉर 12.5. देयरफॉर द सी ऑप्शन हैपेंस टू बी द आंसर. ठीक है. तो पहला वाला में देख लीजिए 50% आ रहा है, फिर 1/4 25% आ रहा है, तो इसमें मेरे पास 12.5 आ रहा है. ओके, चलिए 125 फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया. चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है. फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, है ना. चलिए इसमें अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज की बात करती हूँ, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, है ना. तो अगर यूकैरियोट्स है तो 3 है आरएनए पॉलीमरेज, 1, 2 एंड 3, जो अलग अलग हमारे पास आरएनए बनाता है. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है. एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा. तो इनमें से ये पूरा एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम सब ने पढ़ा है सिग्मा जो है यहाँ पे इनिशिएट करता है, ठीक है ना. और जब ये इनिशिएट करता है तो इसका काम गॉन. बट अब हमको रोकना है, इसको टर्मिनेट करना है, तो ये चला जाता है, तो कौन आ जाता है? रो फैक्टर्स. सो दैट इज रो इज गोइंग टू कम एंड स्टॉप द प्रोसेस. तो अगर आप देखो अल्फा एंड रो, विच इज करेक्ट, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ए ऑप्शन. फिर भी देख लीजिए बी इज रॉन्ग, फिर सी वो भी रॉन्ग है, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ए. इतना इसको ज्यादा पढ़ने का नहीं है, बट सिग्मा एंड द रो पढ़ लीजिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी का वर्ड्स है. ओके. 126 मैच द फॉलोइंग. ओके, you are having A option. चले चेक कर लेते A B C D. ट्रांसफर RNA. चले क्या करता है ट्रांसफर RNA? ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड्स को लेकर आता है ना. तो ट्रांसफर RNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो 3 के साथ में. ओके. rRNA, it's a part of ribosome, तो forms the R ribosomes out here, so that means option number 1. HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, it is known as primary transcript, जिसको हम प्रोसेस करते हैं, मैच्योर करते हैं टू फॉर्म द mRNA. तो ये क्या हो गया? 4th ऑप्शन. mRNA is what? Which provides templates for translation. Template means source of information, so that is the 2, है ना. तब आंसर क्या हो गया? 3142. तो this is not the answer. 3142, ऑप्शन नंबर C is the answer for it, है ना. क्लियर. चलिए, इन द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, ये हमने कॉपी किया है क्वेश्चन. कहाँ से याद आ गया? हमारे पास में 19 में जो था क्वेश्चन, पेपर नंबर निट 19 में जो था ये क्वेश्चन आया था. यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स, विच इज करेक्ट. पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड में, बट इज दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट? नो. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कैटलाइजेस द ट्रांसफर अमीनो एसिड ऑन द मैसेंजर आरएनए. ये हमारे पास इसको शिफ्ट करता है फ्रॉम व्हाट ए साइड टू द पी साइड. ठीक है. अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड एंड लिंक्ड टू द कोऑर्डिनेट ट्रांसफर आरएनए. यस, अमीनो एसिड जो फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी का लाइन है, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज अमीनो एसिड जो है ये एक्टिवेट होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एंजाइम. ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एटीपी एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंड तब जाके ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बन गया यहाँ पर.
अब ये जाके ट्रांसफर आरएनए को लगता है अपना रिस्पेक्टिव ट्रांसफर आरएनए को, सो दैट इज द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन आउट हियर। ठीक है, चलिए 128 statement is not true about human genome, not true about human genome. Less than 2% of the human codes, genome codes for protein, which is correct. A is correct. फिर मेरे पास क्या आ गया? B option. Total number of genes is estimated to be 30,000, which is again correct out here. फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन। क्रोमोसोम X has most genes. आपको क्या सिखाया था? 1 2 3 4 5 किस बेसिस पे दिया? डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ इट। जो सबसे लंबा है दैट इज 1, सबसे छोटा है y, दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 शुड हैव द मैक्सिमम जीन्स एंड सबसे कम किस में होना चाहिए था? Y में। So that means the option number C happens to be the wrong answer and happens to be the answer for the question. Repeated sequences make a large portion of human genome, which is also correct out here. The answer for that happens to be option number C. 129. Given below is a phosphorus cycling का terrestrial part out here. I hope सबको पता बिना पहले देखो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर भी मरते हैं, प्रोड्यूसर भी मरते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास ये प्रोड्यूसर से आया तो ये क्या हुआ? डेड एंड डिकेइंग मैटर लिटर हो गया। बट ये भी मरा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? डेट्रिटस मैटर। डिकम्पोजिशन हुआ सॉइल सोल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास में क्या था? रॉक्स था। जो विदरिंग हुआ तो ये बना रहा है। तो अब हम लोग देखते एक बार पहले देखें आर विदाउट सीइंग दिस 129 आर हैपेंस टू बी द प्रोड्यूसर। ठीक है ना? P happens to be the detritus matter. That means अब उसमें देख लेंगे ऑप्शन में कैसे detritus matter है। S happens to be producer का मरा हुआ तो litter. That means leaves सब गिर गया वहाँ पे। फिर मेरे पास में क्या है? Q happens to be the rock, है ना? ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस के। रॉक का ही तो विदरिंग होगा, सॉइल सॉल्यूशन बनेगा। लेट्स सी टू दिस ऑप्शंस। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे पहले मेरे पास R इज प्रोड्यूसर, तो बेस्ट पार्ट इज एक ही में प्रोड्यूसर लिखा राइट है। फिर भी देख बाकी चेक करते हैं। P इज व्हाट? डेट्रिटस, वेरी करेक्ट। S इज व्हाट? S इज व्हाट? लिटर फॉल, ऑब्वियसली करेक्ट है। लिटर है, लिटर फॉल है। एंड फिर मेरे पास Q क्या है? रॉक मिनरल्स है, रॉक ही टूटेगा, सो दैट हैपेंस टू बी रॉक मिनरल्स। देयरफॉर द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन आउट हियर इज ऑप्शन नंबर C। आपको इससे फॉस्फोरस का भी आ जाना चाहिए। फॉस्फोरस इज अ सेडिमेंट्री साइकिल आउट हियर। ठीक है, 130। चलो मैच करते हैं इसको। एनाफेज 1 देखिए हमारे पास एनाफेज 1 एंड 2 दोनों में है। याद करिए एनाफेज 2 इज द कॉपी ऑफ एनाफेज माइटोसिस। वहां पे हमारे पास क्रोमेटिड्स मूव्स टू द ऑपोजिट पोल, वेयरएज यहाँ पे एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव्स टू द ऑपोजिट पोल। तो देख लेते हैं ए और बी में क्या मैच कर सकते हैं। ए में सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम किससे मैच करेंगे? ए से। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2। होमोलोगस हो गया। Separation of the two chromatids, it is 4, that means anaphase 2. Let's talk about C option. Metaphase 2. Metaphase में हमारे पास alignment of the chromosomes at the equator होता है, so that is 3 का, C का 3, D का telophase 2. Telophase 2 में मेरे पास 1 spindle apparatus बचा, which is not correct. 4 daughter nuclei are formed. अगर telophase 1 होता तो 2 daughter nuclei formed, that means 5 के साथ मैच करूंगी। 2 4 3 5 2 4 3 5 very correct. The answer for this happens to be the C option. Clear? चलिए 131 ये हमने आपको उसमें भी दिया था क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। इन द लास्ट वाला क्या कहते हैं पीटी में लिखो उसको। इसमें डायग्राम्स बनाया ए बी सी, आपको बता दिया बी इज द रेगुलेटर जो हमेशा स्टेबल रहता है, बाहर में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्फर्मर्स बाहर के साथ चेंज होते रहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है। तो लेट्स गो फॉर इट। इसमें क्या पूछा? इसमें से विच इज ट्रू फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हुज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अगर उसको चेंज करना पड़ा है तो व्हाट इज दैट? दैट्स अ कॉन्फर्मर। तो हमारे पास रेगुलेटर 2 ही हैं, मैमल्स हैं और हमारे पास कौन है? बर्ड्स हैं। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस टू बी अ कॉन्फर्मर, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी द ऑप्शंस स्टिल। हाँ जी, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। फाइन। चलिए 132 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट। चलिए देख लीजिए। जगन्नाथ रेमी, जगन्नाथ किसकी वेराइटी है? जगन्नाथ बताया था, वैसे बुक में नहीं है, पर इट इज अ वेराइटी ऑफ व्हाट? राइस। तो ये मेरे पास चला गया।
कल्याण सोना, सोनालिका, ये हम सबको पता है, दीज आर द वेराइटीज ऑफ व्हीट। तो अभी के लिए मेरे पास आंसर बी इज करेक्ट है ना, हाई यील्डिंग है, यहाँ पर डिजीज रेसिस्टेंट है, करेक्ट है। हिमगिरी एंड प्रभानी क्रांति, अगर आप सोच रहे हिमगिरी, यस हिमगिरी इज करेक्ट आउट हियर, बट प्रभानी क्रांति किसके लिए, क्रांति करने के लिए चला गया, कौन है, दिस इज द भिंडी है ना, एबेल मॉस्कस सिखाया था, प्रभानी क्रांति उसकी वेराइटी, सो दैट इज रॉन्ग। तो नन ऑफ अबाउट तो होगा नहीं, हमारे पास द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी कल्याण सोना, सोनालिका बताया था ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, बट सोना उगले, उगले मीन्स सोना मतलब क्या, दिस इज द व्हीट जो कि गोल्डन गोल्डन होता है, ठीक है। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। चलिए 133, If a cell has 14 chromosome in the interphase, ठीक है, मैंने अभी उसने सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं किया, how many chromosome will the cell possess at G1, S and M? चले देखें G1, S and M, क्लियर है। इसमें देखो कितना क्रोमोसोम पहले था, 14 था, तो G1 में तो 14 ही रखेगा, क्रोमोसोम के बारे में पूछ रहे हैं और उसने नहीं पूछा अबाउट द डीएनए अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास में क्रोमोसोम जो है, एस में भी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, विच हैपेंस टू बी सेम। माइटोसिस, एम मींस माइटोसिस, आफ्टर द सेल डिवीजन द नंबर रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, तभी इसको इक्वेशनल बोलते हैं, दिस ऑल्सो रिमेन्स 14। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। फाइन, क्लियर है। चलिए 134, choose the correct options out here with the disease and the pathogen, column number A, B, C, D देख लेते हैं। चलिए साइट्रस कैंकर, आपको याद है वहाँ पे टाइफॉइड, साइट्रस कैंकर, टेटनस, सब किससे बताया, मैंने आपको बताया, दिस इज बाय द बैक्टीरिया, सो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। फिर हमारे पास व्हीट रस्ट विच इज सी ऑप्शन, कौन कॉज करता, पक्सीनिया, व्हाट इज पक्सीनिया, इट इज अ फंजाई, सो दैट इज व्हाट, सी ऑप्शन। फिर हमारे पास में स्लीपिंग सिकनेस, पढ़ाया हुआ बुक में डायरेक्टली लिखा है, प्रोटोजोन्स कॉज करते हैं, बचा क्या मेरे पास में, हर्पीस, दैट इज अ वायरस, सो दैट मीन्स 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ओके। चलिए 135, द मेराइन एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, फाइकोकोलाइड्स, फाइको मीन्स फंगल कोलाइड, सॉरी एल्गल कोलाइड्स, माइकोलॉजी इज फंगल स्टडी, फाइकोलॉजी इज एल्गल स्टडी। फाइकोकोलाइड्स कौन कौन प्रोड्यूस करता है, और सबसे पहले मेराइन है, तो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी आर मेराइन आउट हियर, एंड ये दोनों हमारे पास हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सा, एल्जिन, अगर अगर, फ्यूनोरी, कैराजिनिन, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, सो देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द ब्राउन एंड द रेड एल्गी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। एक ही प्रोड्यूस बाय द ब्राउन एल्गी, कौन है, एल्जिनिक एसिड, बाकी तीनों किससे आते हैं, रेड एल्गी से, ग्रासिलेरिया गैलिडियम अगर अगर देता है, विच इज मेंशन इन द बुक्स। फाइन, चलिए 136, स्पीशीज डाइवर्सिटी, चलो देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, ये मेरे पास ग्लोबल है अर्थ, दिस इज द इक्वेटर 0, यहाँ से ट्रॉपिकल, टेम्परेचर यहाँ जाके 90 आ जाता है, यहाँ पे 22.5 या 23.5, तो दैट मीन्स अगर मैं लो लैटिट्यूड से हाई में जाती हूँ, मेरे पास क्या होता है, हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, बट मैं हाई से लो में आती हूँ तो इंक्रीजेस। तो देख लेते हैं, स्टेटमेंट वन बोलता है स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लो टू द हाई, नो, लो टू द हाई डिक्रीज करता, तो ए हैपेंस टू बी रॉन्ग ऑप्शन। बी क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी ग्रो फ्रॉम द हाई टू द लो लैटिट्यूड, यस, यहाँ से जब मैं यहाँ जाती हूँ ट्रॉपिकल एरिया में मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, सो दिस इज करेक्ट, सो आंसर फॉर दैट इज बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग, द ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स क्या है, न्यूमैटोफोर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट्स। अगर आप एक ट्री देखते हो, यहाँ से ट्री है, यहाँ पे देखोगे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे अराइज कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है ना, ये जो अराइज कर रहे हैं दीज आर व्हाट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, किसकी मॉडिफिकेशन आया, टैप रूट का मॉडिफिकेशन, और ये क्यों कर रहा है, बिकॉज कहाँ पे ग्रो करता है, मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में, तो क्या होता है वहाँ पे, रेस्पिरेशन इज अ प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर में पोर्स है, व्हाट आर दिस पोर्स, नोन एज लेंटिसिल्स, तो क्या करेगा लेंटिसिल्स, हेल्प्स इन what, exchange of gases, that means respiration करने में help करता है, these are also known as respiratory roots, तो देख लेते हैं, grows vertically, yes, helps to get oxygen, yes, respiratory roots बोला,
found in the plants growing in swampy areas. Yes, marshy areas, swampy areas are same. Are modified adventitious root. क्या बोला मैंने? Tap root. So that means the answer for the question 137 happens to be the D option, modified adventitious roots. Okay, चलिए 138. A bud is present in the axil of the simple leaf. पहले देख लेते हैं. ये मेरे पास एक simple leaf है, ठीक है ना? ये इसका पिट्यूल है, यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होता है, एक्सिल ऑफ दिस, दैट मींस पिट्यूल के एंड में, विच इज करेक्ट. एंड द एक्सिल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ. एक कंपाउंड लीफ कैसे बनता है? दिस इज द मिडरिब. ये जो इसकी मिडरिब थी, ये यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई? द रैचेस आउट हियर. अब ये सारे लीव्स जो है कंपाउंड लीव्स का लीफलेट्स है. Where do you have the bud? You are going to have a bud out here. You are not going to have the bud out here. यहाँ पर नहीं होता है. तो क्या बोला है? Axil of the leaflets नहीं, इसके पास में नहीं, only out here at the base of the rachis. So this is option number A is wrong. तो पहला part is right, the second part is wrong. Each leaflet के base पे नहीं, petiole of this, that means नीचे में correct है. The midrib of the leaf of the neem is called rachis. Yes, this is a neem leaf जिसमें pinnately compound leaf होती है, and pinnately compound leaf में सभी के सभी हमारे पास leaves are arranged on this. What is this? This is a rachis. Originally क्या था? Midrib, which is correct. So that means A is wrong, B is correct. So let's see the options now. A option is wrong, that is correct लिखा, wrong है. Only B is correct. That means option number B is correct out here. Okay? चलिए 139. Which of the following has inferior ovary? Inferior ovary को बोलते हैं क्या हम लोग? Epigynous. Epigynous को हम लोग symbolically कैसे लिखते हैं? G a bar above that. अगर G के नीचे होता तो सुपीरियर ओवरी. गुआवा, पीच, क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. एक है जिसके पास इंफीरियर नहीं है, वो कौन है? पीच. बुक में क्या लिखा? रोज, प्लम, पीच. तीनों के पास में हमारे पास क्या है? पेरिकाइनस. सो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास आंसर नहीं है, मतलब आंसर है इंफीरियर ओवरी नहीं है. एंड रे फ्लोरेट्स आई होप आपको पता है, येलो पार्ट ऑफ द सनफ्लावर इज सो, क्यूकम्बर गुआवा पता है आपको. सो देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, दैट इज द पीच आउट हियर. ओके 140. Both apical meristem and intercalary meristem appear early in the life of a plant. Contributes to the formation of what? Obviously हमने ये पढ़ा है, ये मेरे पास plant है, ये मेरे पास ऐसा है. इसको देखो, नहीं तो if I draw it like this, चलो देख लो, I draw this better form of it. ये मेरे पास एपिकल मेरिस्टम में शुरू से प्रेजेंट है. ये मेरे पास है लेटरल मेरिस्टम जो बाद से प्रेजेंट है. यहाँ पर एट द जंक्शन मेरे पास है व्हाट इज दिस? इंटरकैलरी मेरिस्टम. जो भी पहले से प्रेजेंट होता है वो लेंथ इंक्रीज कराता है. दैट इज व्हाई इट्स नोन एज प्राइमरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम उसको बोलते हैं क्योंकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ इंक्रीज. इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में बुक में क्या लिखा है? ग्रेजिंग एनिमल्स जब आते हैं किस पार्ट को खाते हैं जो कि लेंथ इंक्रीज करवाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम. प्राइमरी तो हमको पता ही एपिकल मेरिस्टम है. सेकेंडरी इज रॉन्ग. लेटरल मेरिस्टम, दिस इज द लेटरल विच इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम, रॉन्ग. परमानेंट मैच्योर सेल है ही नहीं, मेरिस्टम कैन नॉट बी परमानेंट सेल. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. फाइन. 141. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, देख लीजिए, अगर मेरे पास ऐसे vascular bundle हैं, xylem and phloem are arranged on the same radius. What is this known as? Conjoint है, collateral है, so that is wrong. But अगर मेरे पास xylem and phloem ऐसे है, चलो I draw better वाला. अगर जाइलम यहाँ पे, फ्लोएम यहाँ पे, जाइलम यहाँ पे, फ्लोएम यहाँ पे, जाइलम यहाँ पे, फ्लोएम यहाँ पर, डिफरेंट रेडियस में, इसको बोलते हैं रेडियल. एंड दैट्स द फीचर ऑफ द रूट्स. तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. इसको ही कॉन्जॉइंट बोलते हैं, इसको ही कोलेटरल बोलते हैं. अगर मैं इसके बदले ऐसा बना देती जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड. बट ये है कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन. बट ये कोई भी सभी के सभी क्या सेम रेडियस पे हैं. सो दैट मीन्स द आंसर फॉर दैट इज बी ऑप्शन. 142. अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोस्ट ऑन. सबसे पहले अबैक्सियल क्या है? दिस इज द डॉर्सल साइड, अडैक्सियल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड, अबैक्सियल साइड. डी से डॉर्सल, डी से अडैक्सियल. ओके, नाउ अबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब नीचे वाला, बियर्स मोर स्टोमेटा दैन द अडैक्सियल. तो किस में है? डॉर्सी वेंट्रल.
क्योंकि ये क्यों है, ये एक्सपोज होता है तो ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपिरेशन होने का चांसेस है। टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट हमारे पास ज़्यादा कहाँ पर होता है, ऑन द बैक्सियल साइड। अगर वो आइसोबाइलेटरल लीफ है, मोनोकॉट लीफ है, दोनों में इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज द राइट ऑप्शन ए। मोनोकॉट इज आइसोबाइलेटरल, इक्वल है, उसी को आइसोबाइलेटरल लीव्स विद द बेल। अच्छा, व्हाट इज दिस, लीव्स विद द बिलिफॉर्म सेल्स, ग्रासेस के अंदर में, जो कि इसको लीफ को कर्ल करने में हेल्प करता है। ओके, सो दैट इज ऑन द अपर एपिडर्मिस। जो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ए ऑप्शन। 143 माइकोप्लाज्मा, सबको पता माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट अ मेंबर ऑफ मोनेरा। कंप्लीटली लैक्स द सेल वॉल, यस। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस। सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, करेक्ट, सब कुछ राइट है। तो कौन सा है पूछा इसमें, इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली दैट मीन्स द डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर इट, बिकॉज स्मॉलेस्ट है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रह सकता है, और क्या कहते हैं, लैक्स सेल वॉल, राइट है। मैच द फॉलोइंग। 144। अभी ये सब क्वेश्चन जो करवा रही हूँ आपने रैंक बूस्टर में कर लिया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जेनेटिक्स में रॉन्ग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी तक वो रैंक बूस्टर में नहीं किया, वो भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आपको फिजियोलॉजी तक यहाँ पे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए 144, लेट्स टॉक अबाउट द मैच द फॉलोइंग। फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस के साथ कौन है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस लिखा है बुक में। एस्कोमाइसिटिस कौन है हमारे पास में, न्यूरोस्पोरा, पिंक मोल्ड आउट हियर। देन बेसिडोमाइसिटिस रस्ट फंजाई, पक्सिनिया, जो भी मैंने बताया था आपको। फिर ड्यूटरमाइसिटिस ट्राइकोडर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Alternaria, Colentotrichum, Trichoderma are the 3 members of Deuteromycetes imperfecti. 4312, 4312, option number D is the right answer for it. Okay? चलिए, मशरूम, रस, मट, तीनों के तीनों किसके मेंबर्स हैं? These are members of Basidiomycetes. 145 क्या है? Basidiomycetes, the D option. मशरूम को अगैरिकस बोल सकते हैं, एडिबल वाले को। पॉइजनस है तो अमानिटा, रस्ट मैंने आपको बता दिया है, पक्सिनिया, स्मट क्या, उस्तिलैगो, है ना। तो ये आपका आंसर है, किसको बिलोंग करते हैं, बेसिडोमाइसेटिस। चलिए 146, मैच द फॉलोइंग, चल लिख लेते हैं पहले। चलिए, जिब्रेलिन, सबको पता जिब्रेलिन हमारा, अच्छा रॉन्ग मैच है कि नहीं, ऐसे करना है, ओके करेक्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग मैच। जिब्रेलिन कॉजेस बोल्टिंग, आई होप इट्स क्लियर टू यू। रोजेट होता है, रोजेट को लंबा करना इज नोन एज बोल्टिंग, एंड लंबा ही इंटरनोड को लंबा करना ही जिब्रेलिन का काम है, करेक्ट है। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, करेक्ट है, न्यू लीव्स बनाता है, नया सब कुछ फॉर्मेशन साइटोकाइनिन करता है। इथाइलिन इंक्रीजेस मेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, नो, क्या होना चाहता, फीमेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स को ज़्यादा करता है, तो यहाँ पर हमारे पास यील्ड भी इंक्रीज होती है। So that is wrong. Abscisic acid causes seed dormancy, correct. उसका नाम ही abscisic acid क्यों है, ये क्या करता है, डॉर्मिन और abscission cause करता है। So therefore the wrong match is the C option, which is male flowers, जो कि होना चाहिए था female flowers। 147, pyramid of energy, बिना देखे, इट्स किसी का भी आए, पॉन्ड का आए, किसी का भी आए, हमारे पास एनर्जी का पैरामिड जो होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट। क्यों है अपराइट, हमने सीखा है T1 के से एनर्जी जो है ओनली 10% इज पास टू दिस, 10% एनर्जी पास होता है T2 के पास में। दैट मीन्स सपोज इसके पास में 100 है, तो इसके पास में कितना जा रहा है, 10। T3 में इसका 10% पास हो रहा है, मतलब कितना जा रहा है, 1। इसके पास में इसका 10% पास हो रहा है, कितना जा रहा है, 0.1। What does it mean? हमेशा ये क्या होगा, नीचे बेस में चौड़ा, and this is it. You are going to have it. So it may be a pond, it may be a terrestrial वाला. It's always what, upright. तो answer for the question is B option. ठीक है? चलिए 148. In the oocytes of certain vertebrates, which of the following substages can last for months? Prophase is the longest phase in case of mitosis. मियोसिस में प्रोफेस 1 and 2 दोनों हैं, तो एक ही लॉन्गेस्ट होगा, प्रोफेस 1 इज लॉन्गर दैन द प्रोफेस 2। बट प्रोफेस के अंदर भी बहुत सारे सब स्टेजेस है, उसमें सबसे लंबा कौन है, डिप्लोटिन, बिकॉज दैट मे बी सस्पेंडेड आउट हियर। अगर सस्पेंडेड हुआ तो बहुत सारा मंथ्स या ईयर्स के लिए हो सकता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी
इज द लॉन्गेस्ट फेज, बट साथ में मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चंस भी बता दिए हैं दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द पेपर। बट ये अगर पूछा किसके अंदर कौन सा है वर्टिब्रेट, नॉर्मली एम्फीबियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या करता है, इक्वेशनल डिवीजन कराता है, क्रोमोसोम नंबर सेम कराता है, चोट लग जाए तो उसको रिपेयर कराता है। तो सेल रिपेयर, यस ए वाला इज राइट। आगे देख लेते हैं, इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। नो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन में कब इंक्रीज होता है, जब हमारे पास में फ्यूजन होता है, मियोसिस होता है, तो ऑटोमेटिकली माइटोसिस कभी ये नहीं करा सकता। रॉन्ग। प्रोड्यूसर रिकॉम्बिनेंट्स, ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स होगा, वो मियोसिस करता है। ब्रिंगिंग वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग, वही क्रॉसिंग ओवर। ये तो ये सारे के सारे बी सी डी इज रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर, दैट इज अ पार्ट ऑफ मियोसिस। तो आंसर फॉर द ऑप्शन 149 हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर ए। 150, डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज सीन इन। किसके अंदर ये साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है, सबसे पहले यू हैव दिस फॉर्मेशन, जब आपके पास बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो गया। बाइवेलेंट हमारे पास कब बनता है, जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। बट लास्ट में जब वो खत्म होने लगता है, कहाँ पे खत्म हो लगता है, दैट इज डिप्लोटिन। फाइन, तो आंसर फॉर 150 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस पेपर सॉल्यूशन। आई होप, आई रिक्वेस्ट प्लीज वीडियोस देखिए, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। अलॉन्ग विद द आंसर्स वी गिव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर options also. So please watch it and try to understand all the questions in detail. All the best, keep studying, take care.